हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल कृषांग नॉलेज जोन। आज हम वहीं से स्टार्ट करेंगे जहाँ पे हम फर्स्ट पार्ट में ख़त्म किए थे। फर्स्ट पार्ट में हमने ख़त्म किया था एल्फिलियन तक, और सेकंड पार्ट से स्टार्ट करेंगे, मतलब लेंथ ऑफ डे एंड नाइट। तो हम स्टार्ट करते हैं। The length of the day and night varies from place to place, season to season. तो लेंथ होता है डे का और नाइट का, ये प्लेस से प्लेस का होता है और सीजन्स का। टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट लेट अस केयरफुली ऑब्जर्व द गिवन डायग्राम। मीन्स ये डायग्राम है, इसमें डायग्राम का सन रेस बता रहा है। एक साइड डे एंड नाइट, मतलब जो एक ग्रीन साइड है, ये ग्रीन साइड ये डे है, ये ब्लू साइड ये नाइट है। द गिवन फिगर represent the earth when the northern hemisphere is inclined toward the sun. the northern hemisphere है, इधर दिख रहा है, जो नॉर्थ हेमिस्फीयर है ये इंक्लाइंड है, मतलब सन रेज के सामने है। अब पर आएंगे। In the given figure, circle X is drawn parallel to equator, representing from a portion of the earth। ये जो एक्स ये इक्वेटर है, इसका पोर्शन दिखा रहा है, ये डेडिकेट कर रहा है। You can see that the length of the lighted portion of the circle is longer than the portion in the darker। जो सर्कल है इससे ज़्यादा बड़ा है डार्कर साइड में, डार्क साइड में, ठीक है। Thus, even with the rotation of the Earth, more than half to the will be light in the of the sun. The remaining less than half will be in the dark and while experience night, ठीक है। If you mark on this circle represent the location of any place and rotate the earth, then out of the 24 hours of the day, the portion will remain in the light for more than half time. The day at this point will therefore longer than the night, longer day than the night। इसका आगे बढ़ते। Similarly, when the southern hemisphere is inclined toward the sun, any place in the southern hemisphere will experience longer day and the shortest night। इसी तरह मतलब जैसे सदर्न हेमिस्फेयर इंक्लाइंड रहता है सन के सामने, तो लॉन्गर डे होता है और शॉर्टर नाइट होता है। ये पोर्शन को हम छोड़ते हैं, ये पोर्शन उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। द चेंजिंग सीजन्स, the phenomena of change of seasons is caused due to two reasons: the revolution of the earth around the sun, जो रिवॉल्यूशन होता है अर्थ का अराउंड द सन, इस वजह से होता है चेंजिंग सीजन। द इंक्लिनेशन ऑफ द अर्थ एक्सिस एट एन एंगल ऑफ 66.5 डिग्री टू द प्लेन ऑफ इट ऑर्बिट। तो जो इंक्लिनेशन होता है, मतलब जैसे इसमें अर्थ टिल्टेड है, जैसे देख सकते हैं आप, ये जो स्ट्रेट है इसे टिल्टेड है थोड़ा, तो एंगल ये 66.5 डिग्री पे टिल्टेड है, इसीलिए इस वजह से होता है, इस वजह से भी होता है। तो अब करते हैं ये सॉल्स्टिक्स। बोथ सॉल्स्टिक्स एंड equinox refer to seasons in a calendar year. These seasons come about because of the Earth's position in relation to the Sun. Therefore, solstice and equinox happen 4 times a year. Solstices occur during winter and summer around December 21 and June 21, while equinox occur during spring and fall, March 21, September 22. The term refer to the Earth axis in relation to the Sun. There are a few notable differences between solstice and equinox. Solstices occur when the point of the Earth axis is pointed directly toward the away from the Sun. When this happens, the Sun appears have reached its southernmost
southernmost or northernmost or points are or poles. During the summer solstice, usually the first day of summer, the sun is far farthest north, and the time between sunrise and the sunset is the longest. अब पढ़ते हैं जून 21 समर सॉल्टिक्स. इसका फर्स्ट पॉइंट क्या है? On or about June 21st, the noon ray from the sun fall vertically on the Tropic of Cancer. जो नून रे होता है जून 21 में और सन का वो फॉल करता है वर्टिकली ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. दिस इज़ बिकॉज द नॉर्थ पोल इज टिल्टेड टुवर्ड द सन. इसलिए होता है क्योंकि जो जैसे ये डायग्राम में देखते हैं नॉर्थ पोल है टिल्टेड है सन के सामने. सेकेंड पॉइंट क्या है? द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर हैज़ द लॉन्गेस्ट डे एंड द शॉर्टेस्ट नाइट. जो नॉर्थर्न हेमिस्फीयर होता है जो इस वक्त तो लॉन्गेस्ट डे होता है और शॉर्टेस्ट नाइट होता है. थर्ड पॉइंट, एज अर्थ रोटेट इट एक्सिस ऑल पॉइंट लाइंग ऑन द नॉर्थर्न ऑफ 66.5 डिग्री नॉर्थ remain constituently within the circle of illumination, thus experiencing 24 continuous hours of daylight and the midnight sun. इसका क्या है? ठीक है. फोर्थ पॉइंट, ऑन द अदर हैंड ऑल द पॉइंट्स 66.5 डिग्री साउथ और द आउटसाइड ऑफ द सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन एंड दस हैव 24 कंटिन्यूसली आवर ऑफ डार्कनेस. जो इसका पॉइंट होता है साउथ में जब आउटसाइड द सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन तो डार्कनेस 24 आवर्स रहता है कंटिन्यूसली. इसका फिफ्थ पॉइंट, it is summer in the northern hemisphere where winter in the southern hemisphere as during this. अब पढ़ेंगे दिसंबर winter solstice. On or about December 22nd, the ray of sun will fall vertically on Tropic of Capricorn, the parallel of 23.5 degrees south. जो ये होता है मतलब जब दिसंबर विंटर सॉल्स्टिस होता है दिसंबर 22 द रे होता है सन फॉल करता है वर्टिकली ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे. द पैरेलल होता है 23.5 डिग्री साउथ. दिस इज़ बिकॉज ऑफ द साउथ पोल इज इंक्लाइन टुवर्ड द सन, द नॉर्थ पोल इज़ अवे फ्रॉम इट. जैसे डायग्राम में देख सकते हैं जो इधर अब साउथ पोल है, डायग्राम में साउथ पोल है, ये टुवर्ड द सन है मतलब सन के सामने है और नॉर्थ पोल डार्क साइड चले गए इसलिए यहाँ पे ये नॉर्थ पोल अवे फ्रॉम इट है बैक साइड डार्क साइड. इसका सेकंड पॉइंट क्या है? द डे आर लॉन्गर एंड द नाइट आर शॉर्टर इन द सदर्न हेमिस्फीयर. इसमें क्या होता है सदर्न हेमिस्फीयर इसमें भी डे आर लॉन्गर रहता है और नाइट आर शॉर्टर. थर्ड पॉइंट, एज अर्थ रोटेट ऑन इट एक्सिस ऑल पॉइंट लाइंग साउथ of 66.5 degrees south remain constituently within the circle of illumination, thus experiencing 24 hours of daylight. देखिए जो इसका ये डायग्राम है पोजीशन ऑफ जून 21 और दिसंबर 22, ये दोनों मतलब ये दोनों डायग्राम इम्पोर्टेंट है. इसमें क्या करना है मतलब जो पोजीशन ऑफ द अर्थ ऑन जून 21 इसका जो जब नॉर्थ पोल टूवर्ड्स होता है सन के तो इसको क्या कीजिएगा अगर दिसंबर 22 भी करना है दोनों एक साथ तो बस सन वहीं रहेगा अर्थ को चेंज कर देगा और साउथ वैसे का वैसे डायग्राम तो साउथ पोल सामने रहेगा ना. जो मार्च 21 होता है इसमें स्प्रिंग इक्विनॉक्स द मोमेंट ऑफ द वर्नल इक्विनॉक्स मार्च इक्विनॉक्स ऑकर ऑन दिसंबर 20 और 21. जब इसका मतलब वर्नल इक्विनॉक्स है तो ये ऑकर होता है मार्च 20 और 21 पे. सेकंड, द रे ऑफ सन फॉल वर्टिकली ऑन आर इक्वेटर पे ये फॉल होता है. एट दैट टाइम द सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन पासेस थ्रू बोथ पोल. जो सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन रहता है इस टाइम पे दोनों साइड से पास होता है. सो ऑफ daylight and darkness are nearly hours each all over the world. नियर होता है.
इट इज स्प्रिंग इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड ऑटम इन द सदर्न हेमिस्फीयर। जो स्प्रिंग होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, ऑटम सदर्न हेमिस्फीयर। द पोजीशन इज नॉन एज स्प्रिंग इक्विनॉक्स। इस पोजीशन को स्प्रिंग इक्विनॉक्स। आगे इसका क्या है, दिसंबर सॉल्टिक्स और जून सॉल्टिक्स का डिफरेंट बिटवीन। ये डिफरेंट बिटवीन इम्पॉर्टेंट है, ये पूरा डिफरेंस बिटवीन, तो इसको करना ज़रूरी है, तो करिएगा। सेम थिंग है, बस यहाँ पे शॉर्ट में डिफरेंट बिटवीन कर रही है, तो ये आपको करना होगा। सितंबर ऑटमनल इक्विनॉक्स। सितंबर 22 एंड 23 इज द मोमेंट इन द टाइम ऑफ द ऑटमनल इक्विनॉक्स और सितंबर इक्विनॉक्स व्हेन सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन अगेन पासेस थ्रू बोथ पोल। इसमें भी बोथ पोल से पास होता है और ये ऑकर होता है 22 एंड 23 सितंबर को। सेकेंड, द रे ऑफ द सनलाइट वर्टिकली एट इक्वेटर फॉल वर्टिकली एट इक्वेटर। तो जो इसका सनलाइट रे होता है सनलाइट का, फॉल होता है वर्टिकली और इक्वेटर पर। ऑल पार्ट ऑफ द ग्लोब एक्सपीरियंस नियरली ऑफ 12 डेज एंड 12 आवर डे एंड 12 आवर नाइट। तो इसमें क्या होता है, 12 आवर्स डे होता है और 12 आवर्स नाइट। 4 पॉइंट, इट इज़ एट ऑटम इन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर एंड स्प्रिंग इन द सदर्न हेमिस्फीयर। जो इसका ऑटम होता है तो ये नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में होता है और स्प्रिंग सदर्न हेमिस्फीयर में। इसका जो ऑटमनल इक्विनॉक्स का ये जो है डायग्राम, पोजीशन ऑफ द अर्थ मार्च एंड सितंबर दोनों का दिया हुआ है ये डायग्राम, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, तो ये भी करना होगा, ठीक है। तो ये चैप्टर कंप्लीट होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अब नेक्स्ट क्लास में दूसरा सब्जेक्ट करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब।